जी। ओके। सो कार्डियक डिजीज आज हमारा टॉपिक है, कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि ये इस तरह का टॉपिक है कि अगर एग्जाम में आ जाता है आपके एक्सटेंडेड टॉक्स में, तो अगर तो प्रिपेयर्ड है तो पास है, नहीं प्रिपेयर्ड तो वो जिसे कहते हैं ना कि कोई अगर टॉपिक आपने छोड़ दिया एग्जाम में, ये उस किस्म का है कि अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो यू कैन नॉट पास दैट स्टेशन। मतलब इसमें आप बोंगियां नहीं मार सकते। तो इसलिए ऑब्वियसली आप प्रिपेयर तो करके ही जाओगे। जी सुंदर सा आप हम स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो है तो बता दें, वो डिस्कस कर लेते हैं, वरना हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं मैम, सिनेरियो नहीं है मेरे पास। ओके, सो पेशेंट इज प्राइमी ग्रेविडा and she is at 30 weeks of gestation, and she has come to you with excuse me, shortness of breath, and for 2 weeks, and she is actually a known case of rheumatic heart disease, which she had in her childhood, and she's a treated case of mitral valve stenosis. How will you manage her? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुंदस है। मैं पिछले इसमें मैडम I हिस्ट्री think देनी you है, do it स्ट्रक्चर as a डिस्कशन? structured viva, in not as a role player, ताकि हमारी चीजें सारी कवर हो जाएं। तो आप एज a structured viva हमें बता दो बस जी। Okay, madam, I will introduce myself to the patient. I will take all the required biodata regarding her name, age, occupation, her educational status, and her husband name, age, his educational status. And then after that, I will inquire about her last menstrual period, pattern of the previous cycle. And then after that, I will ask about her visit to the physician last time, and any subjective complaints now, and for how long this disease was diagnosed, and for how long she is taking medication. Either she is compliant to the medication, or she ever had any adverse effects related to that, any and her compliance to the medication, and what medication she is taking, the dosage of the medications. And then after that, madam, I will take the trimester wise history about her spontaneous pregnancy, any history of folic acid intake in first 3 months, any history of the fever, flu, rash, photosensitivity, raised blood pressure. And in the second trimester, I will inquire about history of quickening, history of any PV bleeding, leaking, or any history of subjective complaint associated with the cardiac diseases, like shortness of breath, any history of fever, and history of fever. And then, madam, I will also inquire about fetal movement and pattern of the fetal growth, and if any history of decreased fetal movement associated with it. Then, madam, after that, I will inquire about drug allergies, her personal history of the sleep, appetite, smoking, and her personal history of any diabetes mellitus, hypertension, and tuberculosis, asthma, and family history of congenital heart diseases, and diabetes, hypertension, and asthma, and any hepatitis. And I will also inquire about the history of previous pap smear, contraceptive history, and past history of her menstrual history, any history of age of menarche, any menorrhagia, oligomenorrhea, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding. And then after that, madam, I will proceed towards the socioeconomic history. After completing history, I will proceed towards the examination. I would like to know the BMI of the patient. I will check her status of pallor, BP, pulse, temperature, respiratory rate. I will also auscultate her heart, cardiovascular, for any added sound or murmur, and respiration, and respiratory examination for any added sound or edema. And then after that, madam, I will do her abdominal examination, her symphysiofundal height, Lahaye presentation, fetal heart sound, auscultation, and clinical estimation of Likert. And then after that, I will also observe for her pedal edema, and madam, I will also measure her JVP. And sorry, madam, before that, I would like to give you about the differentials that I will keep in my mind will be the ये जो मैडम इसकी इसके अलावा मैडम इसको मैं फीवर का भी पूछूंगी मैडम, और कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई है तो एनीमिया के मैडम मैं सिम्टम्स वो सॉरी क्वेश्चंस पूछना भूल गई थी इससे। उसमें मैडम आई विल टेक हिस्ट्री ऑफ मैडम पीछे से दोबारा पूछ लूं।
मैडम मैंने वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, टॉपिक का भी पता नहीं था, तो बट यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं यही कहने लगी हूँ कि इसमें डरने की बात नहीं होती है। आई एम हैप्पी दैट यू वॉलंटियर्ड। इट सीम्स लाइक आप तैयारी करके आए हो। यू डूइंग वेरी वेल, कोई बात नहीं। देखो, इस बात ये है कि एग्जाम में कोई चीज भूल गई है, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेंशन कर देना बेहतर है छोड़ देने से। चाहे पीछे जाके ऑब्वियसली किसी भी सिनेरियो में, चाहे आप क्लिनिक में बैठे ओपीडी कर रहे हो, जो भी किसी भी सिनेरियो में वापस जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता, ना पेशेंट के सामने, ना खुद को, ना सिस्टमेटिकली आपका एक लुक आती है, ना ऑर्गेनाइज लगते हो। एग्जाम में भी ऐसी है। मतलब ऑब्वियसली आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आप हिस्ट्री की बातें करते हैं, खुद भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है एंड यू थिंक यू शुड मेंशन इट, तो आप उसको फिर कह दो, जिस तरह अभी आपने बात की है कि आई मिस्ड दिस थिंग, क्योंकि है तो सब इंसान ही। लेकिन अगेन इतनी तैयारी हो कि मिस हो ना। ना सिर्फ और ऑब्वियसली आप हर मरीज में अगर ऐसे करना शुरू हो जाओगे क्लिनिक पे, तो उनमें से कई पेशेंट्स बड़े अवेयर होते हैं, और उनको इम्प्रेशन अगर बुरा आ जाए तो दे नेवर कम बैक टू यू। तो आपने एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड ही तरीके से चलना होता है। यू आफ्टर यू हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट, आप उसको उसको सारा उसको आपने पैल्पेशन भी कर लिया, आपने उसका पीवी भी कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी सारा कर लिया, और फिर आप उसे बिठा के फिर आप हिस्ट्री की बातें, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ मिस कभी हो ही गया है, तो छोड़ देने से तो बेहतर है मेंशन करते हैं। तो इट्स ओके, करो, बोलते जाओ। मैडम उसमें आई विल टेक डिटेल हिस्ट्री ऑफ अबाउट ऑर्थोपनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, एनी ब्लीडिंग डायथिसिस लाइक ब्लीडिंग गम्स, पर रेक्टल ब्लीडिंग और हेमाचूरिया, एंड आई विल also take history of about pica, worm infestation, dietary habits, decrease diet in egg, meat, poultry, fish, and I will also inquire about history of malaria, and any history of bleeding disorder, anticoagulation drugs. ये मैडम मैंने इस पे पूछना था। और गुड। अच्छा देखो, आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाज नॉट बैड, इतना बुरा नहीं था। आई एम श्योर अगर इसकी और आप तैयारी करो तो शायद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही कर जाओ, बिकॉज इट वाज गुड, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड फॉर एग्जाम। उसके लिए अब वही बात है कि हर टॉपिक को आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर्ड हो, ताकि वो उसमें कुछ मिस ना कर पाए। देखो, इस पेशेंट में मैंने आपको बहुत इजी करके एक डायग्नोसिस दे दिया कि शी इज अ नोन केस ऑफ, और शी इज अ ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस। यहाँ तक कि मैंने माइट्रल वाल्व की वजह भी बता दी कि उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज हुई थी बचपन में, राइट। पूरा सिनेरियो ये है कि शी इज प्राइमरी ग्रेविड एट 30 वीक्स एंड शी हैज कम टू यू विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शी इज अ ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस विद हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज इन चाइल्डहुड, ठीक है। सो अब इसके अंदर आपको जो सारी हिंट्स हैं, आपने इसी चीज को बहुत ज्यादा एलैबोरेट करना था। आपने रूमेटिक हार्ट डिजीज की कोई खास हिस्ट्री नहीं ली, आपने ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस की बात ही नहीं की। मतलब क्या ट्रीटेड केस, डिड शी हैव एनी ओपन हार्ट सर्जरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिसकी वजह से उसके माइट्रल वाल्व को, या उसकी कोई वो एनजीओ के थ्रू, या वो बलून के थ्रू डायलिटेशन की गई थी वाल्व की, या क्या था, और किस डिग्री तक का माइट्रल वाल्व था, और किस तरीके से, और कब ट्रीट हुआ, और वो सारा, और ट्रीटमेंट से पहले क्या सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट के बाद क्या सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी से पहले की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसकी। और व्हेन शी कंसीव्ड, तो फिर अब बिकॉज शी हैज अ ट्रीटेड केस, तो उसको क्या क्या मेडिसिन के ऊपर है, या कई दफा रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स तो लाइफ लॉन्ग भी कई दफा मेडिसिन के ऊपर होते हैं। तो उन मेडिसिन की कितनी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी थी। सो इसके अंदर यू डिड ओके, बट इसके अंदर अगर आपने, वही बात है कि हर कार्डियक डिजीज के पेशेंट को अगर आपने ऑर्गेनाइज किया हो, शी इज अ केस ऑफ कार्डियक डिजीज विद सुपर इम्पोज्ड अनीमिया, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन से पता करेंगे। बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि अब कार्डियक डिजीज का पेशेंट है। तो इसमें फिर कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री वाला अगर पैटर्न आपने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो कि उसके अंदर आपने हर कार्डियक डिजीज में सबसे पहले प्रेगनेंसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्री प्रेगनेंसी वाला लाइफ पीरियड की हिस्ट्री है कि हाउ वाज शी डायग्नोस्ड टू हैव अ कार्डियक डिजीज, नंबर वन। उसका व्हाट कार्डियक डिजीज शी इज हैविंग वो बता दिया कि आप कहोगे क्या, इट्स बीन गिवन इन द सिनेरियो दिस इज अ केस ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस। तो उसमें फिर आप डिटेल क्या, वुड लाइक टू नो कि व्हेन शी हैड रूमेटिक हार्ट डिजीज, कि वो था भी कि नहीं था, क्या वो कंजेनिटल वाल्वुलर डिजीज है या क्रोमेटिक है। She was born all right and she didn't have any cardiac disease at birth, but later at the age of maybe 5 years or 10 years or so, she had continuous fever, joint pains, etc. And she was diagnosed to have rheumatic heart fever, rheumatic disease, और जिसकी वजह से rheumatic fever, जिसकी वजह से she was on long term monthly injectables as well.
ठीक है, उससे तो ये कंफर्म हो गया कि रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक था। एंड देन उसके बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, क्या हुआ, शी वाज डायग्नोज्ड टू हैव मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, और फिर उसकी सर्जरी हुई कब नहीं हुई, वो सारा वो आपने क्विकली 4 लाइनें उसकी आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सर्जरी उसकी कंडीशन ठीक रही, जो भी सारा कुछ रहा, ठीक है। और शी वॉज ऑन द लॉन्ग टर्म, मे बी शी वॉज ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, और मे बी शी वॉज ऑन किसी लॉन्ग टर्म उसके ऊपर है, और फिर व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट नाउ, अब वंस नाउ शी गॉट प्रेग्नेंट, अब इसके अंदर बायोडेटा में आपने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मिस की आपने, ठीक है, हस्बैंड का नाम ये वो, उससे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि उसका मैरिड फॉर कब की है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी एज, उसका शी इज मैरिड फॉर वट एवर, और वो सारी चीजें उसके लिए बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। खैर बहरहाल, जब एचओपीआई में आपने वो प्री प्रेगनेंसी वाला सारा कर लिया, फिर व्हेन शी गेट गॉट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के अंदर अब आकर उसकी आपने, बिकॉज अब एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, आपने क्विकली ट्राइमेस्टर वाइज बहुत ज्यादा वो आपने बहुत अच्छा कवर किया कि जल्दी वो कर लिया, लेकिन अब प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट इज अ केस ऑफ नोन कार्डियक डिजीज, तो हमने क्या क्या ख्याल रखना होता है, एक चीज ये कि उसके सिम्टम्स प्रेगनेंसी के वक्त कैसे थे, कार्डियक डिजीज की कंडीशन कैसी थी प्रेगनेंसी के वक्त, उसकी वो मेडिसिन कंटिन्यू होती रही या जो भी वो ले रही थी, इफ शी नीडेड एंटीकोएगुलेंट्स, और सो कार्डियोलॉजिस्ट थ्रू आउट आपके साथ लेजॉन में है कि नहीं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करती रही, उसकी एको कब कब होती रही। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी कार्डियक डिजीज का है, उसको 3-4 चीजों से हमने बचाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि उसकी कार्डियक डिजीज एग्रवेट ना हो जाए, बिकॉज इफ शी गेट्स एक सेकेंड सॉरी, इफ शी गेट्स अगर इस पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ शी गेट्स इन्फेक्शन, उसकी कार्डियक डिजीज एग्रोवेट हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक स्ट्रेस और ऐड हो जाएगा, उसके हार्ट को और ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा उससे उससे फाइट करने के लिए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि शी शुड नॉट गेट एनी प्री टर्म लेबर। नंबर 3 ये कि उसको हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको अनीमिया नहीं होना चाहिए, राइट। ये 3-4 चीजें हैं जिससे आप उसको हिस्ट्री में पूछोगे कि उसके कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं रही किसी भी उस तरीके से, उसके बाद अच्छा, अब द पेशेंट इज ऑलरेडी देयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, कहीं वो फेलियर में तो नहीं जा रही। आपको एक डायग्नोसिस, अव्वल तो मुश्किल ही है कि एग्जाम में डायग्नोसिस ही दे दिया जाए कि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस का केस था, तो आपको एक छोटी सी पिक्चर जहन में आ जानी चाहिए हार्ट की एनाटॉमी की। मैं क्लास के एंड पे दिखा भी दूंगी कि हाउ आई रिमेम्बर द होल कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी, उस उससे ये कि आपको बेशक बहुत डिटेल्स वैसे तो थोड़ी सी पता ही होंगी, बिकॉज आप सब थ्योरी करके आए हुए हो पास, लेकिन अगर आपको इतना ही पता है कि अगर माइट्रल वाल्व है और इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और अगर माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो गया, तो वो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा रहा है, तो इट कैन लीड टू रिदमियाज एंड हार्ट फेलियर, एंड इफ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो वो बैक फ्लो प्रेशर बढ़ाएगा और वो पल्मनरी अफेक्ट लाएगा, पल्मनरी हाइपरटेंशन भी कर सकता है, पल्मनरी एडीमा भी कर सकता है, जिसकी वजह से मजीद हार्ट फेलियर हो सकता है। और इसी तरह अगर राइट साइड हार्ट की साइड की का मसला हो, तो वो आपका फिर सारा राइट हार्ट फेलियर वाले साइंस आ जाते हैं, राइट। तो आपको ये एक रफली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो हम शायद बहुत ही एमबीबीएस के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं हार्ट एनाटमी के, अगर राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर में ज्यादा से ज्यादा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और अगर एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है, जहाँ एट्रियम का बात आ जाती है, वहां रिदमियास की बात आ जाएगी। और ये सारी फिर चीजें इवन लाइफ थ्रेटनिंग और हार्ट फेलियर वाली चीजें हो सकती है, और रिदमियास कैन लीड टू एम्बोलाइटिस एज वेल, राइट। तो वो सब कुछ हो सकता है। सॉरी, मैं म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आपने इस चीज को इसी तरह ही कवर करना है कि अगर, और स्पेशली ये कि एको उसकी कब कब हुई है, उसका लास्ट, उसका माइट्रल वाल्व का डायमीटर क्या आ रहा था, उसकी एजेक्शन फ्रैक्शन क्या आ रही थी, और अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, यस, अनीमिया की हिस्ट्री वाज रियली दैट इम्पोर्टेंट, कि अगर आपने मिस कर दिया तो एग्जामिनेशन के बाद ही जाके उसकी जिक्र कर दो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डीडी की तो इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा जिक्र करने की इसलिए बात नहीं रही, क्योंकि आपको एक बड़ी डेफिनेटिव हिस्ट्री मिल गई है कि शी इज अ नोन केस, राइट। तो डीडी से ज्यादा जरूरी है कि शी इज हेयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बिकॉज ऑफ द हार्ट फेलियर और बिकॉज ऑफ एनीमिया, तो उसमें के अंदर ठीक है। अब उसके अंदर आपने बड़ी मुश्किल मुश्किल टर्म्स बोलना शुरू कर दी, पता नहीं क्या ब्लीडिंग, क्या ये वो डायस्थिसिस और क्या क्या, उसमें अगेन आपने मेडिकल टर्म्स ही बोलनी। नबीला जी, आपने कोई क्वेश्चन करना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी बात। अगर अगर हिस्ट्री में दे भी दिया है कि कार्डियक प्रॉब्लम है,
फिर भी मतलब हम एनीमिया के अगर इसलिए क्वेश्चन कर लें कि वो दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने इस तरह का एक केस देखा था कि मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में ये लोग समझते रहे कि शायद वो एनीमिक है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, और वो बाद में पेरीपार्टम कार्डियोमा मतलब वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू कार्डियक, तो बिकॉज शी मतलब वॉज को नॉट एग्जिस्ट कर रही नोन है। केस। दो चीजें, आपकी क्वेश्चन समझ आ गया, बिकॉज शी, दो चीजें। एक तो ये सिनेरियो होगा जिसमें दिया होगा कि शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज, जैसे कि मैंने आपको दिया कि नोन केस है और ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, राइट। इवन अगर नॉन केस भी है तो भी एनीमिया की हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि एनीमिया है समथिंग जो कि हमने कार्डियक पेशेंट को नहीं होने देना। सो वी नीड टू रूल आउट कि कहीं इसको एनीमिया तो डेवलप नहीं हो रहा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि पेशेंट या डॉक्टर डजंट नो कि पेशेंट इज हैविंग सम कार्डियक प्रॉब्लम, शी इज देयर ओनली विद द सिम्टम। उसके अंदर तो जाहिर है पूरे डीडी में वी नीड टू रूल आउट के क्या है उसका, उसमें तो हमने जाहिर ही बात है इस चीज को रूल आउट करना है कि अनीमिया है या उसको ये है कार्डियक डिजीज है, तो उसके अंदर तो और भी इलेबोरेटेड। लेकिन अगर नॉन केस ऑफ कार्डियक डिजीज है तो उसके अंदर इसलिए अनीमिया की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिम्टम से तो हिस्ट्री से तो पता चलेगा कि शी इज डेवलपिंग अनीमिया और नॉट। ठीक है, अलॉन्ग विद द कार्डियक डिजीज। थैंक यू ठीक है, मैम। आई होप यू गॉट योर। जी। जी सारा। हाँ सारा, अच्छा गलती से आएगा। सो ठीक है, इस तरीके से। सो बाकी आई थिंक सुंदर ने बातें तो मोर लेस सारी की हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से। सबसे पहले आपने एचओपीआई में प्री प्रेगनेंसी बातें कि डायग्नोस्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो, एंड इफ यू रियली थिंक शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स कार्डियक डिजीज, तो आप उससे पूछ सकते हो कि कोई बचपन में रिमेटिक फीवर तो नहीं हुआ या कुछ ऐसा, या if she was born with some ऐसे congenital problem या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ शी इज अ नोन केस फिर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फिर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है प्री प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको उसकी मेडिकेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसकी सर्जरी क्या हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और उसका प्रोग्नोसिस और उसका वो सारा क्या है। दूसरी चीज ये कि और कौन सी मेडिकेशंस पे है वो। उसके बाद आप जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड एचओपीआई लोगे तो उसके अंदर आपने सारी बातों में ट्राइमेस्टर वाइज के एको कब कब होती रही, कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट कब कब होता रहा, उसको कहीं पे बीच में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हुई, कहीं बीच में वो आईसीयू में तो दाखिल नहीं होना पड़ गया उसको, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो रूल आउट करनी है पूरी प्रेगनेंसी में कि कहीं उसको इन्फेक्शन, एनीमिया और हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप हो गई जिससे उसके हार्ट पे लोड बढ़े। उसके बाद आपने अब उसकी प्रेजेंट कंडीशन के, अब बिकॉज शी इज हियर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको एलैबोरेट करना है कि डू यू रियली थिंक शी इज गोइंग टुवर्ड्स हार्ट फेलियर, और डू यू रियली थिंक दैट शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम जिसकी वजह से जैसे कि मे बी एनीमिया और समथिंग जो कि आप ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं क्या, तो वो आपने उस चीज को रूल आउट फिर करना है। ठीक है। एग्जामिनेशन, एक सारा का भी क्वेश्चन लेते हैं 2 मिनट पे। एग्जामिनेशन नबीला का ज्ञान ठीक था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट वाज सो हैप्पैज़र्ड। How can you go after abdominal, how can you talk about JVP after abdominal examination? मतलब I don't know। जब जनरल फिजिकल की बात हो रही है तो जनरल फिजिकल की बात हो रही है ना, फिर आपका लोकलाइज एग्जामिनेशन, फिर लोकलाइज एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो फिर जेवीपी की बात की, तो इतना ज्यादा बुरा इंप्रेशन दे रहा था एग्जाम में। मतलब ऑब्वियसली आप उसी तरह बात करोगे जैसे आप परफॉर्म करोगे। आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद उसका जेवीपी देखोगे, आई आई डोंट थिंक सो। ये कहाँ की बात है? edema of exam, abdominal examination should be the final thing you should be doing in an obstetrical patient। ठीक है, इस चीज को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करो। जब आप जनरल फिजिकल की बात कर रहे हो ठीक है, बेशक फोकस्ड बात कर लें बिकॉज टाइम कम है, अपने पेशेंट मैनेज करना है, 10 मिनट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब आप सिर्फ फोकस्ड बात करोगे तो फिर पल्स की बात पूरी करो ना, बिकॉज शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज। एक तो होता है कि नोन ना हो, शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज और ऊपर से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये पेशेंट एक आम मरीज नहीं है। शी इज एट 30 वीक्स एंड शी मे बी गोइंग इन हार्ट फेलियर, शी मे बी हैविंग ग्रेड 4 हार्ट डिजीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके एग्जामिनेशन किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पल्स पे डिटेल बताओ ना कि इसका पल्स का रेट कैसा है, वॉल्यूम कैसा है उसका, इज इट रेगुलर और इरेगुलर, और उसकी कोई और मिस बीट्स और एक्स्ट्रा वो सारी चीजें आप उसकी थोड़ा सा तो जिक्र करो ना। उसके बाद आप उसका बीपी की बात करो डिटेल में, उसके बाद आप जेवीपी की बात करो, उसके एडिमा की बात करो, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की उतनी ही बात करो जितनी आप लोकल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, जिसके अंदर उसकी
उसका इंस्पेक्शन है चेस्ट की, उसकी उसके बाद उसकी पेल्पेशन में कहीं उसका पेल्पेबल मर्मर तो नहीं है, उसकी एपेक्स बीट पेल्पेबल कैसी है, और फिर ऑस्कल्टेशन और किस कदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब आपने इन चीजों का शायद जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद आपने फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपने करना है। सारा ने क्या पूछना है? जी, सारा। अच्छा, सारा का हैंड रेज हुआ हुआ है, तो हम पूछूंगी। सो हेलो। ठीक है। जी जी, सारा। मैम मैंने पूछना था, अगर एक पेशेंट थी हमारे पास ग्रेविडा 2 पैरा 1, उसकी प्रीवियस भी कार्डियक हिस्ट्री थी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की ना। वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 26 वीक्स पे अगेन प्रेजेंटली 26 वीक्स पे की थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और 30% इंजेक्शन फ्रैक्शन। तो मैम इतनी अर्ली फिर नेक्स्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट कर प्रेजेंट करती सकते है। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैम यही पूछना था। ठीक है, अच्छा चले, कहाँ गई हमारी डॉक्टर सुंदर? ठीक है सुंदर, सो गुड। इसको इस तरीके से थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो अपनी साइड। यू नीड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, वन आई थिंक मोर लेस यू आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो इन्वेस्टिगेशंस बता दें सुंदर। मैडम इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होंगे और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन में मैडम ब्लड ग्रुप अलोंग विद आरएच फैक्टर एंड हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, TLC count, platelet in cubic millimeter square, midstream urine for microscopy and biochemistry, viral serology, and in specific investigation, madam, there will be echocardiography, X-ray chest, and madam, anomaly scan, fetal echo, and recent growth scan. हम्म। और मैडम इसमें और मैडम प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन इसकी मैं मांगूंगी मैडम ड्रग्स देखने के लिए। ठीक है, गुड। और मैडम अभी तो ये मैडम और फीटल एको का मैडम मैंने बता दिया था। ठीक है, गुड। अच्छा, सो ठीक है। तो आप ओके, और किसी ने इन्वेस्टिगेशंस मांग ली है? मैडम ECG, अगर एग्जैक्टली, मैं पेशेंट आई की वाज आल्सो वेटिंग फॉर ईसीजी। मैडम अगर एंटीकोएगुलेंट यूज मैडम कर अगर रही है तो पेशेंट जो वो एंटीकोगुलेंट पे होगी, अगर वारफरिन या इस सच पे होगी, तो उसका INR इम्पोर्टेंट है। गुड। वो तो डिपेंड करता है, वो उसने कहा कि मैं ट्रीटमेंट टिकट देखूंगी, राइट? तो उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस मांगूंगी, दैट्स ऑल राइट। और देखो, इन्वेस्टिगेशन वही बात है कि यू आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस पे शायद, मतलब ऐसे पूरा इन्वेस्टिगेशंस का भी वही लेवल था जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन का था। दे वर नॉट रॉन्ग, बट इसको और अच्छा करेंगे ही तो पास होगा। शायद इस पे भी पास हो जाए, बिकॉज ये इतनी बुरी नहीं थी सुंदर की इन्वेस्टिगेशंस। लेकिन ये है कि इसको और ऑर्गेनाइज। वही बात किसी ने चैट में बिल्कुल ठीक मेंशन किया, चेस्ट एक्सरे आई डोंट रिकमेंड चेस्ट एक्सरे। मतलब एक तो प्रेगनेंसी है, ऊपर से चेस्ट एक्सरे आपकी मैनेजमेंट में क्या फर्क लाएगा, आई डोंट नो। सो चेस्ट एक्सरे का इसमें कोई इतना वो नहीं है। और उसके अलावा और किसी ने कोई कमेंट करना है? ओके। सो इन्वेस्टिगेशन वही बात है कि जिस तरह आप हर एक में याद रखते हो कि किस में क्या करना है, उसके अंदर आपका बेसलाइन के अंदर यस ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एचबी को और इलेबोरेट कर दो, लाइक आप एचबी का एक सेकेंड जरा मैं वो कर। अच्छा, एचबी का जो है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो कि एचबी, और इफ इट इज लेस देन 10.5, देन आई वुड लाइक टू नो द सारे इसके आरबीसी इंडिसेस पे, क्योंकि थोड़ा सा शो करने के लिए कि शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑलरेडी, और ऊपर से कार्डियक डिजीज। सो उसमें, और फिर आप हर कार्डियक डिजीज के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशंस मांगने के बाद एक ईसीजी मांग लेते हो, एक एको जरूर मांगते हो, और एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मांग लेते हो, बिकॉज यू नीड बेसलाइन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इन कार्डियक पेशेंट। कोई भी ड्रग स्टार्ट करने से पहले या कहीं कुछ भी उसमें उससे पहले, और फिर इट्स बेटर इफ यू चेक और यू आस्क फॉर द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, मे बी वेन एवर शी वॉज ट्रीटेड फॉर द माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि उसका क्या है। जिस तरीके से आपने डेटिंग स्कैन और ग्रोथ स्कैन, और जिस पे भी आपने एम्फोसाइज किया एनॉमली स्कैन पे, उतना ही एम्फोसाइज अगर आप इसकी एको पे भी कर दो कि उसका स्टार्ट पे एको कैसी थी और अब एको कैसी थी पेशेंट की। फीटल एको, फीटल एको कराएंगे या नहीं कराएंगे, कौन बताएगा?
मैडम अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अगर की पेशेंट को हुई It's not a तो case of रिस्क congenital heart disease, na. She is a case of rheumatic fever. She is a case of rheumatic heart disease, right? मैडम दो दो नीड तो नहीं है फिर फिटल एको की, नहीं, क्योंकि मैं अगर भी because कंजेनाइटल अगर she is कोई not. हार्ट अगर कंजेनाइटल वेल्वुलर हार्ट डिजीज होती तो 5 to 12% रिस्क है कि बेबी में ट्रांसफर होता, तो फिर थैंक हम यू। फीटल एको मांग कंजेनिटल होता या इसके कोई फैमिली हिस्ट्री होती या इसके फैमिली किसी हिस्ट्री होती है, चीज प्राइमरी ग्रेविडस सिबलिंग्स और अगर प्रीवियस प्रीवियसली चाइल्ड कोई में भी नहीं। सिबलिंग भी अफेक्टेड होते। जी, बिकॉज फीटल एको इज एन एक्सपेंसिव थिंग, नंबर वन। नंबर टू ये कि मेरा ख्याल है लाहौर में भी दो चार ही डॉक्टर हैं जो फीटल एको करते हैं। मतलब आपको बंदा ढूंढना पड़ता है फीटल एको कराने के लिए। हॉस्पिटल में कोई एक आधा ही अवेलेबल होता है पूरे हॉस्पिटल में, और वो भी बहुत एक, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, आई एम श्योर अदर जैसे कराची वगैरह में शायद ज्यादा होंगे, लेकिन उस बंदे तक पहुंचकर उससे एको कराना इज नॉट एन इजी थिंग। ये ऐसे नहीं है जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं या इवन मदर की एको होगी, हर जगह हो जाएगी मदर की भी एको, लेकिन फीटल एको इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो वही बात है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन है तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फीटल एको का कोई इतना एक्सेप्ट कि वो कंजेनिटल होता है, ठीक है। सो वो नहीं था ठीक। और कोई ऐसी इन्वेस्ट तो मेरे ख्याल से तो मदर की एको, ईसीजी एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चंद एक्स्ट्रा बेसलाइन के अलावा इन्वेस्टिगेशन थी जो हमें करानी थी। ठीक है, और यस ऑफ कोर्स बाकी तो सारे ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन और वो सब है। ठीक है, इवन इफ इट इज इजीली अवेलेबल, अगर जैसे किसी ने कहा कि कराची में होता है अवेलेबल, बट अगेन इवन इफ इट इज इजी, मैं तो कहूंगी हम तो डॉपलर सोच समझ के कराते हैं। आपके हॉस्पिटल में आपके साथ वाले कमरे में भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो ओनली इफ नीडेड समबडी सेड डॉपलर कराएंगे। चैट पे ये भी किसी ने लिखा है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर ऑब्स्टेट्रिकल डॉपलर स्कैन, व्हाई? अगर आपको उसकी ग्रोथ, IUGR इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद कार्डियक डिजीज, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आपको फंडल हाइट लेसर फॉर डेट्स लगी है एंड इफ यू थिंक कि उसकी डॉक्टर की जरूरत है, या मदर हाइपरटेंसिव या डायबिटिक है क्रॉनिक वो भी, तो ठीक है आप डॉक्टर एक 28 वीक्स और 32 वीक्स पे कराते हो, लेकिन अदरवाइज सिर्फ तब जब आपको फंडल हाइट कम मिल रही हो। ये डॉक्टर समी ने बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ है, आप बोल के बता दो कि क्या है, ठीक है, चैट पे। अच्छा जी सोमिया। मैडम ग्रोथ स्कैन 28 वीक से 4 वीकली कराने चाहिए कार्डियक पेशेंट के, नहीं, कि क्यों? जिसके अगर अगर मॉडरेट भी अगर स्टेनोसिस हो, जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस। आप फंडल हाइट मेजर करोगे, सीरियल ग्रोथ स्कैन्स इसमें इंडिकेटेड नहीं। क्योंकि मैडम IUGR इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट जी। मैडम इसलिए क्वेश्चन मैंने रेज किया था क्योंकि एक टॉग आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने स्टीनोसिस के हवाले से लिखा हुआ था कि 4 वीकली 28 वीक से ग्रोथ स्कैन आप कराएं क्योंकि 30% रिस्क है फिर ठीक है, उसमें। एग्जैक्टली वो बिल्कुल है, लेकिन ये तो ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वाल्व जी जी स्टेनोसिस है। मैडम। तो ट्रीटेड केस में तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है, उसमें तो वो एक बेटर पेशेंट हो जाता है, वो तो बेटर प्रोग्नोसिस वाला लेकिन पेशेंट हो मेरे जाता है। पेशेंट अभी जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ आई है तो हम ये वो तो अभी कंसिडर हम नहीं रूल आउट करेंगे। करेंगे ना, एको जी। होगी, रूल आउट होगा फिर। और ओके सेकेंडली आपकी मैडम। फंडल हाइट अगर ठीक आ रही है एंड यू थिंक कि ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू द डेट्स, तो फिर आप बहुत ज्यादा सीरियल उसमें, और फिर स्पेशली एको होगी। ट्रीटेड केस ऑफ वाइट्रल वाल्व तो बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस वाला होता है। थैंक यू मैडम। वेलकम। असल में एग्जाम में जो पूरी ट्रिक ही है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन हर केस में कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन अगर आप मांग रहे हो, इट्स नॉट ओनली इन एग्जाम, इट्स इन योर रियल प्रैक्टिस ऑल्सो। आई थिंक जहां पे भी आप बैठे होगे, हर पेशेंट में आप डॉपलर, हर पेशेंट में आप ग्रोथ स्कैन्स, हर पेशेंट में CT, हर पेशेंट में MRI लिखना शुरू हो जाओगे, तो एक तो खामखा के रिसोर्सेज का इस्तेमाल, और फिर खर्चा देखो वो पेशेंट का क्या होगा। मतलब एक्सपेंसेस की भी तो बात आ जाती है ना। इवन अगर आप फ्री भी करा रहे हो तो आप फ्री क्यों करा रहे हो? आप उस पेशेंट का फ्री कराओ जिसमें वाकई इंडिकेटेड है, जिसमें आपकी मैनेजमेंट इफेक्ट होगी और जिसमें पेशेंट के प्रोग्नोसिस को आप बेहतर कर रहे हो। जिसमें जरूरत ही नहीं है, आप ग्रोथ स्कैन का, शी इज अ ट्रीटेड केस ऑफ माइट्रल वेल, मैंने कहा कि एको, एको के बाद डिसाइड होगा। डॉक्टर सुंदर ने बड़ी सही बात की कि आई वुड लाइक टू सी द ट्रीटमेंट टिकट ऑफ द पेशेंट, और फिर भी पता चलेगा ना कि क्या पता वो एंटीकोएगुलेंट ले रही है, नहीं ले रही, कौन सी ले रही है। क्या पता अगर वो, if she's not on warfarin, maybe she's on Clexane, we don't need to get the INR done, right? So there are many things जिस पे आपकी वो डिपेंड होगी।
ठीक है। तो बेस लाइन फॉर द कार्डियक अगर आप करो तो उसके अंदर आप ईसीजी, एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अलावा आप अगर एनीमिया है तो उसकी डिटेल स्क्रीनिंग मांग लो, वो सारा कुछ ठीक है। और ठीक हो गया। चलो गुड। चले सुनते, फिर और किसी ने कुछ ऐड करना है तो मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, चलो सुंदर, फिर मैनेजमेंट, हाउ विल यू मैनेज हर? Madam, I will counsel my patient about the condition that this is the high risk पहले pregnancy. इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, इस चीज की आदत डालो। मैं हर क्लास में कहती हूँ बिफोर यू स्टार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, पहले आप कहो कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस एंड और आई वुड लाइक टू नो द रिपोर्ट्स। उसकी वजह ये है कि जब तक रिपोर्टें पास नहीं है तो क्या काउंसिल करोगे? आपको क्या पता शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में? जी जी बेटिया। मैडम इसमें वॉल्व एरिया पूछेंगे, इको में मेटल वॉल्व एरिया, गुड गुड। वाल्व सिवियरिटी ऑफ। बेसिकली एको का तो यही मकसद था ना, इंजेक्शन फ्रैक्शन, वाल्व का डायमीटर और वो सारा कुछ, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा हाँ, कहाँ गई सुंदर? ठीक है Ji, जी madam. First of all, madam, I will complete my remaining investigations, and then, madam, after that, I will counsel my patient about the condition that this is the high risk pregnancy, and I will advise her lifestyle modification to. रिपोर्टें तो Uh, पूरी कर लो। जी, madam, रिपोर्टों में मैं madam. कह रही हूँ कि रिपोर्टें तो पूरी कर लो, उसकी एको तो पता करा लो, उसका बाकी कुछ तो पता करा लो। जी, madam, क्या echo में पता madam. वो आपके आगे ऐसे बैठी हुई है, बिकॉज ये तो हम स्ट्रक्चर्ड वाइवा कर रहे हैं, कि आपके पास इतना ही टाइम नहीं है कि आप जो हो उससे ये भी डिस्कस कर सको, कि उसे काउंसल भी कर सको, राइट? शी इज अ पेशेंट ऑफ कार्डियक डिजीज विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब ये कोई ऐसा आम केस है नहीं। जी, मैडम, ठीक है। कि मैडम उसकी echo का पूछना है मैडम कि उसमें साइज ऑफ द mitral valve, ejection fraction हम्म। और हाँ जी, मैं आपको इसकी एको देती हूँ। एको इसकी बड़ी खतरनाक है। इजेक्शन फ्रैक्शन इसका 30% है, जो भी किसी डॉक्टर ने हमें मेंशन किया। डायमीटर इसका स्टेनोसिस इज स्टिल परसिस्टिंग एंड शी इज हैविंग वेरी बैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हर मैं मुश्किल बना रही हूँ सिनेरियो, हर HB इज 8, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मैडम प्लेटलेट्स और PTA PTT। वो ठीक है सारा कुछ। ठीक है मैडम, ये 36 वीक्स पे थी ना पेशेंट हमारी? 30। 30 वीक्स पे, ठीक है मैडम। और मैडम इसमें एको तो मैडम इसकी वो है। और मैडम इसमें मैं कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल फिल्म मैडम वो मांगूंगी, फेरेटिन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रूफ हो गया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है मैडम, इसके बाद मैडम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं? हम्म। और मैडम ड्रग्स क्या ले रही है मैडम, ये पूछना था। कोई कंप्लाइंट नहीं है वो, कुछ उससे पहले किसी ड्रग्स पे नहीं थी। And she was not on, she was not taking oral iron properly also. Last visit इसका जो कार्डियोलॉजिस्ट को था, वो कोई इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का विजिट था, तब she was all right। ठीक है मैडम, तो इसकी मैनेजमेंट बताऊं अभी? जी। Madam, I will counsel my patient about the condition that this is a high risk pregnancy, and and her echo report is not very good. I will tell her about the prognosis and its implication on her pregnancy, that she may end up into the cardiac failure in the, as according to the echo. I will involve multidisciplinary team including senior consultant, obstetrician, physician, cardiologist, and hematological department, radiologist. And then, madam, my aim of management will be to provide symptomatic relief to the patient, optimize her hemoglobin level, and strict fetal-maternal surveillance. I will admit my patient first, and then after that, madam, I will monitor my patient vitals, and I will keep the backup for ICU, and I will take informed written and verbal consent regarding the patient that this is the high risk case, and एक मिनट then इधर ही after. रुक जाओ। यू वर ओके। और थैंक यू नबीला, आपने फाइनली न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन का जिक्र कर दिया। आई वॉज वेटिंग। मैंने इसलिए नहीं किया शुरू शुरू से अब तक, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद डायग्नोसिस में कहीं आएगा जिक्र।
अगर फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में उस तरीके से जिक्र नहीं आया, तो जब हम पेशेंट को की काउंसलिंग करें, यू कैन नॉट काउंसल योर पेशेंट विदाउट टेलिंग हर द डायग्नोसिस। जब तक आपने बात डायग्नोसिस से शुरू नहीं की उसकी काउंसलिंग में, आपने सिर्फ कहा शी इज अ हाई रिस्क केस एंड आई विल टेल हर दैट शी विल एंड अप इन हार्ट फेलियर, ये कैसी स्टेटमेंट है काउंसलिंग करने के लिए? इमेजिन अ कपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आप उसे कह रहे हो कि यू आर अ हाई रिस्क केस एंड यू विल एंड अप इन हार्ट फेलियर। भाई क्यों? पहले बताओ that you from your investigations and history as well, you have been diagnosed to have mitral valve stenosis, although it was treated in childhood or whatever, but the condition has aggravated in pregnancy. Excuse me. और उससे भी ज्यादा ये कि एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू के, अच्छा सो सबसे पहले तो उसे डायग्नोसिस बताओ ना। आप उसे कहो कि जी यू आर, शी इज हैविंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एट द सेम टाइम शी इज हैविंग माइट्रल valve stenosis which is aggravated and superimposed क्या हो गया, anemia हो गया। she may not end up in heart failure, she is in heart failure, right? she is having shortness of breath with this type of ejection fraction। अब क्या शक रह गया कि she is in heart failure? तो अब ठीक है, काउंसलिंग काउंसलिंग तो करोगे अच्छी तरह, बट आई विल इमीडिएटली शिफ्ट हर टू आईसीयू। ठीक है, शी दिस टाइप ऑफ पेशेंट हु इज हैविंग दिस इजेक्शन फ्रैक्शन, हु इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एटसेट्रा एटसेट्रा, she should not sit in front of you for long, she should be shifted to ICU। आप उसको immediately ICU में शिफ्ट करोगे, उसके बाद you will involve multidisciplinary people एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कुछ। तो इस देखो, जब इस तरह की इमरजेंसी का केस होगा ना, हो सकता है वहां पे कोई हाइपरटेंशन का केस बैठा हुआ है और आपको कहा जाता है, सिनेरियो में दिया जाता है कि शी इज हैविंग ब्लड प्रेशर ऑफ 160 110, तो देर इज नो टाइम कि आप उसमें वेस्ट करो इन चीजों में कि जी ये मैं उस फलाने बंदे को बुलाऊंगी फलाने। इमीडिएटली फर्स्ट ट्रीट 160 110, राइट? इसी तरह ये एक इमरजेंसी का केस है, शी इज अ कार्डियक डिजीज, कार्डियक फेलियर में पेशेंट है आपके सामने बैठी हुई। तो आप उसको कहोगे कि पहले तो मैंने काउंसिल किया अटेंडेंट्स को एंड आई विल शिफ्ट टू आईसीयू, एंड देन उसके बाद आप उसकी बाकी की मैनेजमेंट और वो सारा स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो इसको इसमें सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच वहां पे इस तरह के सिनेरियो में देखी जाती है कि आप इमरजेंसी के केस को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। कि आपने रूल आउट कर लिया है कि ये इमरजेंसी है और ये ओपीडी पेशेंट है, या ये इतना को पेशेंट है कि सिर्फ एडमिट हो जाए। साथ में अगर आप एक डायग्नोसिस में बोलते हैं कि आई विल लेबल हर एज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ग्रेड 4 कार्डियक डिजीज, ठीक है, उसमें अगर आप कार्डियक फेलियर का नाम नहीं भी लेना चाहते, क्योंकि हो सकता है कार्डियक फेलियर का जो डायग्नोसिस है या उसका उसका जो जो फाइनल चीज है वो कार्डियोलॉजिस्ट अनाउंस करे, तो एटलीस्ट इतना तो हमें पता है कि ग्रेड 4 कार्डियक डिजीज हो गई। और साथ में मतलब इट्स अ वर्स कंडीशन दैट कैन हैपन टू अ पेशेंट ऑफ अ कार्डियक डिजीज। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। अब दोबारा से सुंदर से इसकी काउंसलिंग करो शुरू। Madam, I will counsel my patient about the condition and I will label it as, no, sorry, I will tell her about the diagnosis, that this is the case of mitral valve stenosis aggravated by anemia, and now it is presented in aggravated condition. I will immediately admit my patient in ICU and I will involve a senior consultant cardiologist in collaboration with the radiologist and senior physician. And then, madam, after that, I will label her as a NYHA class 3, and I will take informed written consent. My aim of management will be to provide symptomatic relief to the patient, strict fetal-maternal surveillance, and to take my pregnancy as close to as term as possible. I will give her a steroid cover, and then after that, madam, during the delivery, I will reevaluate the patient for डिलीवरी further subjective complaints. अभी इस Uh, कंडीशन को तो स्टेबल करो ना। जी मैडम। ठीक है, मतलब शील बी इन आईसीयू और उसके कार्डियोलॉजिस्ट का रिव्यू, उसके बाद उसको डेक्सा कवर दोगे और उसको यू विल I will मॉनिटर give हर। her
जी मैडम, I will give her oxygen, Dexa cover, and keep the patient prop up. And if my patient becomes stable, then madam, I will take my pregnancy. I will try to take my pregnancy as close to as term. And then madam, during delivery, I will also be vigilant for You will any keep her in cardiac ICU event. till term. जी madam. You will keep her in ICU till term. No, madam. I will assess the condition of the mother. If patient becomes stable, then I will shift her back to the ward, and then after assessing her and re-evaluating her, I will discharge her on the basis of her condition. If her condition get improved, if not improved, then madam, I will proceed according to the collaboration with my senior and cardiologist. ठीक है. And if patient becomes stable, then madam, I will shift her to the ward and I will observe her. And if her condition will be stable, then I will discharge her and re-evaluate at 36 weeks. For any meanwhile, I will call her on regular, frequent antenatal visits for any subjective complaint. If everything is okay and there is no subjective complaint, then at 38 weeks, I will assess her Bishop scoring. लेकिन मैडम इसको तो इजेक्शन फ्रैक्शन से वो खराब है, इसको हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं देंगे। तो मैडम आई विल एक सेकंड ठहर जाओ, प्रोसीड मैं टुवर्ड द आपको इलेक्टिव बताती डिलीवरी। एक सेकंड पहले जो कंडीशन थी उसमें से निकला. सो शी वॉज शिफ्टेड इन आईसीयू. वहां पे उसकी सारी जो भी इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो काम होगा एज ऑब्स्टेट्रिशियन, उसके अंदर जाहिर है बाकी काम तो कार्डियोलॉजिस्ट करेगा. हमारा क्या काम होगा इस सारे में? यस, मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग. बट अनीमिया कहाँ गया बीच में से? जी मैडम, ठीक है ना. उसमें मैडम वी विल ऑप्टिमाइज हर हीमोग्लोबिन डू लेवल। नॉट मिस एनीथिंग. जी मैडम, मैडम आई विल ऑप्टिमाइज हर हीमोग्लोबिन लेवल एंड उसके हाउ. बाद मैडम उसको मैडम हम पैक्ड आरसीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे अंडर कवर ऑफ लैसिक्स। ठीक है. हाउ मच? कितने? मैडम अभी तो इसकी 8 एचपी है, तो 2 आरसीसी मैडम इसको कम से I कम हम will discuss लगाएंगे। with cardiologist. जी I मैडम। would like to transfuse one pack cell, right? And would repeat her HP. And will reassess the condition and her symptoms and all that. और मेरे हिसाब से तो चलो एक पैक सेल से अब 9 हो गई HP. If she is better, her shortness of breath is better, overall condition has improved. But there is no harm कि हम जैसे कि अभी आपने कहा सुंदर कि हम 2 लगाएंगे. इस तरह के पेशेंट में अगर आप 10 तक ले जाओ HP because of the pack cell, because she is already stressed because of anemia, तो फिर आप और कार्डियक डिजीज पहले ही है तो हार्ट पे इतना लोड आ रहा है, तो देर इज नो हार्म कि हम 2 पैक सेल इसको लगा दें आईसीयू. राइट. ठीक है. जी मैम। और उसके बाद आप काउंसल साथ साथ करोगे अटेंडेंट्स को और हर एक को कि it is always better obviously that she should not go in preterm labor because delivery itself will be a stressful condition for her at this time. अगर कोई पेशेंट इस तरह की कंडीशन में आता है तो चाहे वो टर्म पे भी हो तो हम डिलीवरी नहीं करते उसकी. हफ्ता डिलीवरी डिले की जाती है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए. उसकी ये कंडीशन प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है बल्कि अनीमिया इन प्रेगनेंसी की वजह से. एक सेकेंड. ठीक है. सो उसकी ये कंडीशन जो है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, मेनली इट्स बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज इटसेल्फ, जो कि एनीमिया की वजह से हुआ है. तो जब तक ये हार्ट डिजीज स्टेबल नहीं होगी शी शुड डेफिनेटली नॉट गो इन लेबर. अगर वो टर्म के पास है तो विल कीप हर इन हॉस्पिटल टिल शी डिलीवर्स, मे बी 36 वीक्स पे अगर या 37 पे. बट एज शी इज इन 30 वीक्स, उस हिसाब से सुंदर ने बिल्कुल ठीक मैनेज किया. पेशेंट को हफ्ता उसने आईसीयू में रखा, उसकी सारी मैनेजमेंट की, मे बी मोर देन अ वीक unless she becomes stable. But once she has been labeled NYHA classification grade 4, तब तक आप उसको अब now she is a grade 4 patient, right? लेकिन if she gets stable तो आप उसको बेशक वार्ड में शिफ्ट करो, keep her in the hospital for some time, but then you can also discharge her with a good follow up. अगर वो फॉलो अप के लिए नहीं आ सकती, रिगार्ड कंसिडरिंग हर डिस्टेंस, उसकी कंप्लायंस हर सेल्फ, उसकी उसकी अपना क्या समझने का लेवल है और उसका लाने वाला कोई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इफ शी कैन कम फॉर रेगुलर फॉलो अप्स देन यू कैन कीप ऑन. फिर आप उसको हर विजिट पे क्या करोगे वो जैसे सुंदर ने बताया, और अब टर्म पे आके करना है वो भी हम बात करते हैं. नबीला ने क्या कहना है जी?
मैम एक तो मैंने ये पूछना था, जैसे एक्यूट कंडीशन के साथ पेशेंट आई है तो हम हम्म, सिर्फ मैनेजमेंट, जैसे हमने ओपनिंग लाइंस बोल दी, वी विल मैनेज हर अकॉर्डिंग टू हर एक्यूट कंडीशन, ये कह देना काफी है? ठीक है, या फिर हम प्रॉपरली ये प्रॉपर ऑक्सीजन, डाइजॉक्सिन, डायरेटिक सारा का एक बार नाम बोल दें? सारा बोलो, और सारा बोलो, अच्छा दूसरा, और सारा दूसरा बोले, सुंदर से बोला था एक्चुअली। के डिस्चार्ज कर देंगे वन स्टेबल, या बोल दे वंस शी गेट टू नेहा क्लासिफिकेशन 2, मतलब हम उसकी स्टेजिंग डाउन करके और मेंशन करें कि इतना हो जाएगा तो डिस्चार्ज करेंगे? ये दो चीजें पूछनी थी मैंने। दूसरी चीज क्या पूछी नबीला, सॉरी? मतलब वन स्टेबल एंड शी गेट्स टू नेहा क्लासिफिकेशन 2 और 1, या 2 तक ही जाएगी ये तो देन वी विल डिस्चार्ज हर, ये चीज मेंशन कर Once दें, ये cardiac ओवर patient is labeled grade 4 will remain grade 4। मतलब वो ठीक है, नहीं होगी, एज इट इज हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ ही कर भेज देंगे, वो वाली बात पेशेंट नहीं है? बेशक स्टेबल हो जाए, ग्रेड 4 का पेशेंट स्टेबल हो जाए, उसकी ग्रेडिंग बदली नहीं जाती। सही मेजर ग्रेड 3, ग्रेड 4, once labeled grade 3 or 4 will remain grade 4 or 3, right? Sorry, सही सही, मतलब ब्लेंडर मारने से बच गई मैं। ब्लंडर की बात नहीं है, ये ऑथेंटिक बात है, रिकमेंडेड बात है, हार्ट डिजीज की बात है। वंस पेशेंट इज लेबल्ड ग्रेड 4, एक दफा कार्डियक पेशेंट आईसीयू का चक्कर लगाए, वो ग्रेड 4 है तो वो मैडम ग्रेड मुझे ये 4 ही बात समझ नहीं आई था, हाँ जी मुझे आज पता चली है कि वो स्टेबलाइजेशन के साथ भी उतनी ही रहेगी। अच्छा, ग्रेड 4 का पेशेंट है वो ग्रेड 4, इसीलिए तो विजिलेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 2 वीकली की जगह उसे वीकली बुला लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि उसके अब कब उसके एको की जरूरत है, और फिर डिसाइड करोगे। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा सुंदर, अब पेशेंट जो है शी हैज रीच 36 वीक्स, उससे आगे का बताओ क्या करोगे? Madam, then again, I will reevaluate my patient. I will recheck her echo in collaboration with senior consultant and cardiologist. Then after that, madam, if there are no subjective complaint and she is not symptomatic, I will call her on regular antenatal visits by keeping her in counseling with that she may that she require regular antenatal visits. Then, madam, at 38 weeks, I will assess her Bishop scoring. सॉरी मैडम, बिशप फिर मैंने इसका नाम ले लिया इसमें। देन मैडम, आई विल काउंसल हर अबाउट एट 36 weeks, I will also counsel her about contraception and she require elective delivery in the high risk unit and tertiary care hospital. And madam, during delivery in the presence of senior consultant and in collaboration with cardiologist, we will keep our emergency trolley ready and we will keep the oxygen nearby, and we will be vigilant for any adverse event. कब And करोगे then डिलीवर? madam, क्या 38 डिसाइड हुआ? 36 वीक्स पे तो बात की ना आपने कि ये होना चाहिए आपके लिए, उसके बाद कब कॉल की और फिर आगे क्या किया? मैम 38 to 39 वीक्स फिर हम इसको डिलीवर कर देंगे ताकि ये स्पॉन्टेनियस लेबर में ना चली जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्टिव डिलीवरी करेंगे मैडम और कोई इसकी। बताना चाहेगा 36 वीक्स पे पेशेंट अब आ चुकी है उसके बाद? मैडम कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में डिस्कस करके इसको डिलीवर करेंगे 38 तक। कार्डियोलॉजिस्ट तो आपको 30 वीक्स पे पीछे पड़ जाएगा। वी ऑल नो आईसीयू में पेशेंट जाता नहीं है, इसको डिलीवर करें डिलीवर करें डिलीवर करें, पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो कार्डियोलॉजिस्ट कैन नॉट डिसाइड व्हेन टू डिलीवर। कार्डियोलॉजिस्ट कैन ओनली टेल यू दैट पेशेंट इज गुड और नॉट गुड एज अ कार्डियक पेशेंट, राइट? मैडम 38 to व्हाई शुड 39 अ पे भेजें। कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड के कब डिलीवर करना है? ये तो बिल्कुल ही फेल होने वाली बात है कि मैम मैं कोलैबोरेशन कार्डियोलॉजिस्ट से में पूछूंगी डिस्कस कब। करेंगे इसके नहीं, साथ। डिलीवरी का टाइम आपने डिसाइड करना है उसका। 38 to 39। कार्डियोलॉजी, हम सबको एक्सपीरियंस है, हम सबको पता है कि पेशेंट आईसीयू में जाता नहीं है, आईयूडी का पेशेंट होता है, सारी दुनिया से प्रेशर आना शुरू हो जाता है इसको डिलीवर करें में, हालांकि आईयूडी कुछ नहीं कह रहा होता पेशेंट को, राइट? वी ऑल्सो नो कि आईयूडी की वजह से नहीं है। कार्डियक पेशेंट हम सबको पता है, और ये प्लीज याद रखें कि अगर अनस्टेबल पेशेंट रिसीव हो रहा है, नेवर डिलीवर है।
दिस पेशेंट एक्सेप्ट कि उसका कोई खुदा ना खास्ता पेरी मोटम सिजेरियन सेक्शन करना पड़े, बिकॉज इस हद तक बात पहुंच गई है कि अब मदर को बचाने के लिए बेबी को निकालना है, कि जो उसकी यूटरल कंप्रेशन को जरा रिलीज करना है ताकि उसका वो, दैट इज अनदर सिनेरियो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीपीआर, राइट। उसके अलावा कार्डियक पेशेंट को, अनस्टेबल पेशेंट को हम कभी इसलिए नहीं छेड़ते कि डिलीवरी करेंगे तो ठीक होगा। डिलीवरी तो उसके लिए और स्ट्रेसफुल होगा, वो और ज्यादा वर्स होगी कंडीशन, राइट। सो कार्डियोलॉजिस्ट को लगेगा कि इसका जैसी बेबी निकलेगा इसकी वेसल्स खुल जाएंगी, इसका सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बट वी नो कि वो जो बेबी निकलने वाला प्रोसेस है वो इतना स्ट्रेसफुल है कि वो इमीडिएट इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम टाइम इज मोर स्ट्रेसफुल फॉर द पेशेंट, राइट। तो हमने तो पेशेंट को छेड़ना ही नहीं, एक्सेप्ट कि वो सीपीआर के लिए कुछ करना पड़े। तो सीपीआर वाली तो कंडीशन ये नहीं है ना, ये तो ग्रेड 4 है, तो हमने पेशेंट शिफ्ट किया हुआ है। सो कार्डियोलॉजिस्ट कैन डील विद द कार्डियक डिजीज। डिलीवर कब करना है वो ऑब्स्टेट्रिशियन, ये बात तो क्लियर है। अब बताएं, 36 वीक्स पे आपके पास यही पेशेंट क्लिनिक पे आ गई है जो कि कब ग्रेड 4 के लिए 30 प्रेग्नेंट हुई थी, आपने स्टेबल किया, सब कुछ अच्छा करके आपने उसे घर भेजा विद द फॉलो अप। शी इज ओके नाउ, मतलब अब नाउ शी इज एट 36 वीक्स। आगे का क्या प्लान है? मैम 836 हम उसके साथ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और तो पेशेंट आप के ही हो ना साथ यार, एग्जाम में तो अब आप ही हो। हाँ, I will discuss the management time and place and mode of delivery with the patient along with the collaboration of the senior obstetrician. ठीक है, क्या टाइम आपने डिसाइड किया? And she should deliver by at least 38 weeks, not beyond. She should not go तो beyond फिर आपने 38. 36 वीक्स पे उसे घर भेज दिया, फिर कब बुलाया? तो मैम हमने मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस कर लिया और उसके अलावा प्लेस ऑफ डिलीवरी दैट शी शुड डिलीवर एट श्री केयर हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको जो है घर भेज सकते हैं 37 पे, फिर से उसको रिव्यू करेंगे। शाबाश, जी मैम, ठीक और है। उसकी कंडीशन, बेबी की कंडीशन हमने रिव्यू कर ली बिशप, और अगर प्राइमी है तो हमने उसको उसकी जो है पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं है वो भी चेक कर लिया, ठीक वेरी है। गुड, वेरी गुड। के बाद अगर वो हेपरिन पे है तो उसकी जो हमने ब्रीजिंग करनी है वो हमने डिसाइड कर ठीक है, लेनी है पहले से। एंड व्हेन शी इज एट लेबर, मतलब अगर स्पॉन्टेनियसली जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम इंड्यूस करेंगे। इंडक्शन के सारे टाइप उससे डिस्कस कर लेने हैं। और जो है जैसे इंड्यूस होता है कि हमने प्रोस्टेनिटू से कर ली, व्हेन पेशेंट इज इनटू द लेबर should be at high dependency unit, proper position, fluid restriction, oxygen अब should 38 be. पे बुलाया आपने उसे? No ma'am, she should deliver in between 37 to 38, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है तो हम 38 पे इंड्यूस करेंगे, तो अदरवाइज हम 37 पे 37। पेशेंट केम इन योर ओपीडी, आपने बड़ा अच्छा ये सारा असेस किया, एंड देन यू सेंट हर होम। व्हेन आर यू कॉलिंग हर बैक फॉर डिलीवरी? इफ शी इज नॉट वी 37 पे उसको एडमिट करके रखेंगे व्हेन, क्योंकि वो कभी भी लेबर में जा सकती है, अदरवाइज उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है तो हम उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकेंगे, तो हम उसको एडमिट करके रखेंगे 37 में। यू आर डूइंग बेटर देन ऑल अदर्स, एक्चुअली दिस इज गुड। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हर देखो, कार्डियक डिजीज में हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। 30 वीक्स पे शी वाज अनस्टेबल, उसको स्टेबल कैसे किया वो सारा सुंदर ने अच्छा किया। अब उसके फॉलो अप विजिट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी सुंदर ने हमें अच्छे बताया कि मैंने इसे वीकली बुलाया, हर विजिट पे मैंने यही असेस करना है। अब 36 के बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो डॉक्टर, बिकॉज उनका नाम नहीं लिखा आ रहा, सो अभी जिन डॉक्टर साहब ने बताया, सो आई थिंक शी वॉज बेटर देन ऑल अदर्स इन अ वे कि आपने उस चीज उसको ऐसे नहीं करना। देखो 36 पे आपने वही सारी बातें दोबारा डिस्कस की, उसके साथ के टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी ऑब्वियसली टर्शरी केयर में होगा, यू आर वर्किंग इन टर्शरी केयर, वो सारा कुछ और उसकी डिलीवरी तक के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का अपने अपने रोल के मुताबिक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि हमेशा ये भी याद रखो कि जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात कर रहे हो तो आपको हर एक का रोल भी पता हो। आपको पता हो कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों इन्वॉल्व किया, रेडियोलॉजिस्ट, ये नहीं कि बस नाम दे दिया तो वो अब आपके साथ मिलके सारा कुछ वही कवर कर दे देंगे। उनका क्या रोल होना चाहिए, किस हद तक वो, इफ यू डोंट नो दैट, तो फिर आप ऑब्स्टेट्रिशियन क्यों रह गए उसके, राइट। आपको अपना रोल पता होना चाहिए, उसके रोल पता होना चाहिए। आपके रोल में दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ना शी हैज रीच्ड 37 वीक्स, बिल्कुल इसी तरह देखो, एक चीज याद रखेंगे, कभी ये बात नहीं करेंगे
कि आई विल, जैसे चैट पे हर एक ने लिखा, आप लोग सारे बात कर रहे थे कि आई विल डिलीवर हर in between 37 to 38 weeks. I will call her at 38 to 38. What does that mean? पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है क्लिनिक पे या ओपीडी में, आप उसे कह रहे हो अच्छा चले जाओ, 37 से 38 वीक्स के बीच में आ जाना। नहीं, हम तो उसे डेट देते हैं कि हम इस डेट पे हॉस्पिटल आना है और इस डेट पे हमने डिलीवरी करनी है। वी नेवर टॉक लाइक के हमने 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में डिलीवरी करनी है, ठीक है। हमने कभी, हम ऐसे बात तो नहीं करते कि चलो तुम ऐसा करो, कार्डियक पेशेंट ग्रेड 4 आईसीयू से निकली हुई मरीज है, हम उसे ये नहीं कहते कि 10 से 14 के बीच में आ जाना। हाँ, फिर मैं डिलीवरी देख लूंगी कि 20 से 25 के बीच में हो जाएगी। हम उसे कहते हैं आपने 10 तारीख को आना है, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 15 को या 17 को मैंने आपकी डिलीवरी कर देनी। वी टेल हर एग्जैक्ट डेट्स, वी हैव टू, ना सिर्फ उस मरीज के लिए, हमें खुद एग्जैक्ट डेट्स पता होनी चाहिए। नॉट अबाउट डेट्स, अगर आप एग्जाम में डेट्स की बात नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वीक्स तो कंफर्म बोलो ना, कि पूरे मैं 38 वीक्स पे इसकी डिलीवरी प्लान करूंगी, 37 वीक्स पे बेशक वो स्टेबल आई है मेरे पास, मैं उसे एडमिट कर लूंगी, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैंने 38 पे उसको डिलीवर करना है। व्हाट इफ एट 37 + 4 वीक्स शी अगेन बिकम्स अनस्टेबल? What if I send her home at 37 weeks and I call her back at 38 weeks? और जब मैं उसे वापस बुलाऊं तो 38 पे तो मैंने उसे डिलीवर करना था, तो वो मेरे पास अनस्टेबल कंडीशन में आई है, फिर मैं उसे आईसीयू में एडमिट कर लूं। अब ना मैं उसे डिलीवर कर सकती हूँ, स्टेबल मैंने उसे करना है, स्टेबल करने में 2 हफ्ते लग जाए, 40 वीक्स पे वो पहुंच जाए, इस दौरान वो लेबर में खुद ही चली जाए, तो अनस्टेबल कंडीशन ओवरलैप विद लेबर, तो उसे और वर्सन कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो आपने 37 पे उसे एडमिट कर लेना है, बेशक एक हफ्ता वो एडमिटेड रहे, 38 पे आप उसको स्मूथ तरीके से कीपिंग हर स्टेबल, आप उसको डिलीवर करके, एंड इन बिटवीन आप उसकी मेडिसिन को टेपर करना है, मेडिसिन को चेंज करना है, कार्डियोलॉजिस्ट उसको रिव्यू करे, एको करे, सारा कुछ करे, एंड यू देन इंशाल्लाह उसको प्लान्ड डिलीवरी एट 38 वीक्स। कोई भी कार्डियक पेशेंट जो कि मेडिसिन पे कॉम्प्रोमाइज है या मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है, 38 weeks. If she's a cardiac case, for example, she's a treated case of mitral valve stenosis, she's not taking any medicines at all, तो वो 39 वीक्स पे, ठीक है। तो ये एक निशानी के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ किस तरीके से याद करें। नॉर्मली करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर फॉर अ कार्डियक पेशेंट देन अ cesarean section. Why are you giving her anesthesia? Why are you giving doing something which will keep her immobilized for a long time, etc etc? तो इसके अंदर आप नॉर्मल डिलीवरी का करेंगे, वो सारा प्रोटोकॉल एक होता है, वो क्विकली कोई भी हमें सुंदर या डॉक्टर जो भी बता देंगे कंटिन्यू एक लाइन में, वो भी मैं सुन लेती हूँ। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीजें, एक तो नॉर्मल डिलीवरी, गुड एनाल्जेसिया, नो ट्रायल फॉर द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। इसके अंदर पूरी कोशिश करनी होती है कि मैनुअली आप ज्यादा इंटरवेंशन वो ना करो। एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ये कार्डाइटिस जो होता था, प्रोफाइलेक्सिस। अच्छा, अब कोई मुझे जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोटोकॉल बता दे और बस फिर 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। जी सुंदर साहब बता दो। Madam, I will be vigilant during the delivery of the patient. I will keep the emergency trolley ready. I will keep the oxygen nearby. I will keep the patient left lateral or slightly prop up during the latent phase, and in active phase, I will shorten the second stage of the labor. I can also apply forceps or vacuum if there is prolonged second stage. And then, madam, after the delivery, I will hand over the baby to the pediatrician. I will do the active management of third stage of labor, and I will be vigilant for PPH. And then after that, madam, I will reposition the patient. I will do the documentation along with the date, time, and I will keep the patient in observation for any worsening symptoms and signs. And I will keep the patient admitted in the high dependency unit. And then after that, madam, I will keep the vital monitoring of the patient half hourly to 1 hourly in the first 24 to 48 hours. And then if everything is okay, I will discharge my patient and call her on follow up in cardiac OPD. ठीक है, And वेरी I गुड, will also encourage her breastfeeding and contraception. वेरी गुड, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज गुड। कॉन्ट्रासेप्शन की बात आपको पता होनी चाहिए क्या करनी है, क्या कॉन्ट्रासेप्शन भी बता दो जल्दी से।
कॉन्ट्रासेप्शन में मैडम देयर आर वेरियस ऑप्शन, क्योंकि हमने इसको 36 वीक्स पे कॉन्ट्रासेप्शन का काउंसिल कर दिया था, तो मैडम PPIUCD भी इसको रखी जा सकती है, और अगर वो उसमें नहीं रखवाना चाहती तो बाद में इंटरवल IUCD विल बी द बेटर ऑप्शन, एंड इम्प्लेनॉन कैन आल्सो बी प्लेस्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली। वही वाली बातें कि थ्योरी भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डायग्नोसिस कौन सा वेल्व किधर है, अगर कौन सा वेल्व की क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उसके थोड़े बहुत आपको एरिथमियास के लिए देखना है, आपने पल्मोनरी एडिमा के लिए देखना है, या आपने राइट हार्ट सॉरी फेलियर के मैडम, लिए मैंने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का बताया ही नहीं था, इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल रखना है मैडम, और इसमें 500 ml हम मैडम फ्लूइड लेते हैं, वो ड्रिप में उसमें हम सिंटो डालेंगे। ठीक है। सौम्या ने क्या कहना है? लास्ट क्वेश्चन पे क्लास खत्म हो जाएगी। जी सौम्या। मैडम एक क्वेश्चन है। मैडम जी प्लेसेंटा के बाद, डिलीवरी के बाद कोई डायूरेटिक्स का रोल है? क्योंकि अक्सर जो है वो हर एक में नहीं बोल देना, हर एक में नहीं बोल देना, ठीक है? हर एक में नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको लगे कि शी इज गोइंग इन हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडीमा, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप हर एक में डिलीवरी के बाद जो है यूरोलेसिक्स दें। जी डॉक्टर मैडम इज्जत ने एक क्या सवाल कहना है? पूछूं? मैडम वो जी सर। प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन है, उनको वी बैक का ट्रायल देंगे या नहीं? यार जो प्रीवियस वन होता है ना, वही बात है कि दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं मैं कहूंगी, दो रिस्क फैक्टर्स मिल जाएं तो सिजेरियन इज अ सेफर चॉइस। प्रीवियस वन विद कार्डियक डिजीज को वीबैक के ट्रायल से बेहतर है, ज्यादा सेफ है सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि खुदा ना खास्ता वीबैक के ट्रायल में कार्डियक पेशेंट की रप्चर यूट्रस हो गई ना, तो फिर हम किधर जाएंगे? सो स्मूथ सिजेरियन, प्लान्ड सिजेरियन इज बेटर देन वीबैक। यू हैव टू बी अ सेफ डॉक्टर। जी अरीफा। मैडम एट व्हाट जेस्टेशनल एज, 38, 39? 38 if she is not, if she is having some medicines or she is stable with the medicines. 39 if she is stable without medicines. जी अरीबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैम मैम ये मैम PPIUCD का पूछना था कि अगर ये कार्डियक पेशेंट है, डिलीवर हुई है, तो उसको इन्फेक्शन का मतलब वैसे तो अलाउ है 48 आवर्स में, लेकिन इसमें हम मतलब अपने सेटअप के लिहाज से सोचते हैं कि हम इसको 4 या 6 वीक्स के बाद ही IUCD अगर डालनी है 48 आवर्स में अलाउड होता है, 24 आवर्स। पीपीआईयूसीडी तो अपने 24 आवर्स के अंदर नहीं होता कि 48 मैम आवर्स में विद तो इन नहीं होता? 48 आवर्स डाल सकते देखने हैं। ना, पता नहीं कल कौन मिक्स कर रहे हैं। मैडम पोस्ट प्लेसेंटल मैम विद इन PPI 15 है, और विद इन 24, और डिस्चार्ज से पहले 24 28 डाल सकते हैं, लेकिन मैडम ये कार्डियक पेशेंट है तो इसको हमें PPICD डालना चाहिए क्या? नहीं डालना चाहिए? पीपीआईयूसीडी कार्डियक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है, लेकिन मैडम कार्डियक है, अगर हम इसे इंटरवल या तो लार्क बता दें मैम कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना बढ़ जाए ना, जैसे हम इन्फेक्शन का नहीं है, अनहेल्दी एसिप्टिक। कुछ भी नहीं है ऐसा। पीपीआईयूसीडी इज अ गुड थिंग, इसमें ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं है। सही है। और मैडम अगर यही पेशेंट अगर एडवांस लेबर में आ जाती है और एनेमिक भी होती है, तो फिर उसकी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे, लाइक अगर ग्रेड 4 ही आ जाती है एक्टिव लेबर में? वो तो फिर बहुत है, वो तो फिर आप सारा वो उसी तरह मैनेजमेंट तकरीबन यही होगी, लेकिन आईसीयू में होगी, फुल जी मॉनिटर्स में होगी, कार्डियोलॉजिस्ट थ्रू आउट लेबर थ्रू आउट डिलीवरी वहां पे मौजूद होगा, और वही फ्लूइड मैनेजमेंट और मेडिसिन को कर रहा होगा, एंड यू हैव टू डिलीवर हर। और उसके अंदर आपने नॉर्मल डिलीवरी इज डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। इस तरह के हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को तो इसमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, इसके अंदर कोई एनेस्थेटिस्ट इसको नहीं एनेस्थीसिया देने की प्रेफरेंस देंगे। सो डिलीवरी तो इसी तरह ही होगी, बट अब उसमें ज्यादा टेंशन तो सारी कार्डियोलॉजिस्ट की है। ठीक है मैम, ब्लड मैडम अरेंजमेंट भी ज्यादा रखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसकी उसके। वो ठीक भी है अब मैम। हार्ट फेलियर वाले वो, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैडम लेबर मैम केयर मैम। नीमा गाइड क्लासिफिकेशन 4 को नॉर्मल डिलीवर कराएंगे? हाँ सिजेरिया, वो उसका एनेस्थीसिया तो देना उसमें और भी ज्यादा वो है, एंड शी इज ऑलरेडी इन एक्टिव लेबर। मैडम लेबर केयर गाइड का नाम लेंगे कि इन लेबर आई विल मेंटेन द लेबर केयर गाइड ऑफ द पेशेंट ना? हाँ कर लो, हर फुल लेबर केयर गाइड का नाम ले लो या पार्टोग्राम का नाम ले लो मैम बिल्कुल। आपने यहाँ पे इस सिनेरियो में इको में बताया था कि स्टिल परसिस्टिंग स्टीनोसिस सॉरी है। डॉक्टर सपना, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, दोबारा ट्राई कर लो वरना टाइप करके पूछ लो। मैम आपने जो है इस सिनेरियो में बताया था कि स्टिल परसिस्टिंग स्टेनोसिस है, तो मैम हम इन कोलैबोरेशन विद कार्डियोलॉजिस्ट PTMC या बलून वेल्वोटमी का जिक्र करेंगे यहाँ पे? हाँ वेरी गुड आइडिया। इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर गिवन ऑन एको, और ऑल्सो कार्डियोलॉजिस्ट के ओपिनियन से बिल्कुल। और मैम एंटीकोगुलेशन का थोड़ा सा बता दें कि इस पेशेंट में कैसे देंगे?
एंटीकोएगुलेशन अगर तो इसके अंदर आर्टिफिशियल वाल्व या कुछ ऐसा है तो फिर आप उसी तरह जैसे वार्फरिन और क्लेक्सिन को आप करते हो मैनेज। और डिलीवरी से पहले भी आप क्लेक्सिन, इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है कि आप 24 आवर्स से पहले बंद करते हो, 12 आवर्स वर्सेस 24 आवर्स और वो सारा कुछ। तो वो जो जो सारा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाला, ये तो फिर एक पूरा कंप्लीट दूसरा टॉपिक है। आई थिंक इस पे तो फिर हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की पूरी एक अलग क्लास करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है रूबा का। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी सर तो मैडम आपने बोला कि वो बलून वल्वोटमी और पीटीएमसी का हम जिक्र करेंगे, तो ये जो है वो कितने टाइम के नहीं, बाद इफ हम नीडेड खुद से नहीं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी, ठीक है ना। वो आपने एको करा ली, जब जिस तरह हमने क्लास में जिक्र किया, जिक्र उसी तरह ही है। अगर तो एको में आपको उन्होंने बहुत एक्सट्रीम कम डायमीटर दे दिया है, तो फिर आप उस चक्रों में पढ़ सकते हो, या कार्डियोलॉजिस्ट ने बात कर दी है। खुद से नहीं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के इस तरह की, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग दैट इज डन इन अ पेशेंट। तो खुद से वो नहीं करना। और बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है डॉक्टर सपना कुमारी ने भी कि अबाउट द एंटीकोएगुलेंट्स, बिकॉज वैल्वुलर डिजीज में मोस्टली पेशेंट्स आर ऑलरेडी ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, क्योंकि इसके अंदर एम्बोलिज्म और उसके चांसेस भी हो सकते हैं एरिथमियाज वगैरह की वजह से। तो अगेन बिकॉज वो एक बहुत लंबा टॉपिक है और क्लास हमारी खत्म हो चुकी हुई है, तो एंटीकोएगुलेंट्स का हम एक अलग चाहे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पे अगली क्लास रख लेंगे। मैम उसके इस पे अंदर क्लास ले लें प्लीज, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पे। ठीक है, इस पे कर लेंगे बिल्कुल। मैडम इसी मैम सेकेंड थैंक यू प्रीलिमिनरी मैम। में जरूर कर वॉलंटियर कोई दीजिएगा। बेशक डॉक्टर सपना मैम आपको वॉलंटियर कर लेना नेक्स्ट। जी मैम जी, रिक्वेस्ट है लास्ट क्लास, क्वेश्चन। जी जी थोड़ा जल्दी मैडम इसको अपलोड कर दें, एग्जाम की डेट आ चुकी है, थोड़ा सा लेट हो गए थे अब क्लास यहाँ में। कर लेंगे, नो ठीक प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पे ही हम क्लास